اور اس کو وداؤٹ اینی ریزرویشن ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ جب تک ایبسولوٹ پروف نہیں آ جاتا کہ یہ کس نے کروایا اور کیسے یہ ہوا, وی شوڈ سسپینڈ آور الٹیمیٹ ورڈکٹ آن دس. جو مجھے نظر آتا ہے اور میں نے بار بار اپنی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ ہیڈ عاصم منیر میڈ سچ اے پروووکیٹو اسپیچ, اس کے بعد اگر یہ انسیڈنٹ ہوتا اس اسپیچ کے بغیر تو پاکستان کی طرف انگلی اٹھانا اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ لوکلی بھی وہاں پہ ٹیررزم کشمیر میں ہوتا رہتا ہے. ایک اردو کا شعر ہے, کسی کو اپنی ضرورت نہ ہو تو کیا کیجے, نکل پڑے ہیں سمٹنے قضا کی باہوں. اب قضا کی باہوں میں شاعر تو لکھ گیا, پر میں تو قضا کی باہوں میں سمٹنے کو تیار. پروفیسر صاحب اشتیاق صاحب نے بہت صحیح بات بولی. یہ ایک ون آف انسیڈنٹ ہوتا تو مان سکتے. جب جنرل منیر کی جو سپیچ ہے, آزادی کے 78 سال کے بعد پاکستان کو سہارا لینا پڑتا ہے ہندو نفرت کا, ٹو مینٹین اٹس اون سوورینٹی. یعنی کہ پاکستان کی سوورینٹی اٹس سبسروینٹ ٹو دی ہیٹ آف انڈیا. اٹ ڈیپینڈز آن ہیٹنگ ہندو. منیر کی جو سپیچ ہوئی نا, یہ قسم کی دیکھیے کہ ایک بہت بڑا ایک واٹر شیڈ سپیچ تھا. کن کارنوں سے اس نے یہ کی, یہ تو جی ایچ کیو راولپنڈی کو زیادہ معلوم ہوگا, ہم اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, وہ کانسیکوینسز بہت زیادہ آنے والے سمے پہ بھی دیکھنا, اس کی گونج بہت زیادہ دونوں پورے سب کانٹیننٹ میں رہے گی. ڈاکٹر اشتیاق احمد اور میں, ہم بہت ہمارا آپس میں رابطہ ہے, ہم ایک ہی پیج پہ ہیں کہ ہم مانتے ہیں جو کلچر ہے اس کی سپریمیسی ہمیشہ ہی ہوتی ہے وے آف ورشپ کے اوپر, جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. کہ جو پاکستان کے جرنیل نے بولا ہے وہ اپنے طور پر پولیٹیکلی, ہسٹوریکلی, لاجیکلی اینڈ ایون ایٹ دا لیول آف ہیومن بینگز آلسو, کلچرلی آلسو, دیٹس ایبسلیوٹلی رانگ, ایبسلیوٹلی, there is no doubt about it. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات ضرور کہنی چاہیے کہ جیسا ماحول پچھلے کئی برسوں سے ہمارے دونوں ملکوں میں چل رہا ہے, کین وی سے فار شیور کہ دونوں ملکوں سے ایسی آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں, یہ کہنا بہت مشکل. ہم تو ہندوستان کے جسے کہتے ہیں ہارٹ لینڈ سے آتے ہیں, بنارس سے, اور جو پہلگاؤں میں واقعہ ہوا وہ اگر کچھ چیزیں ہم نے بھولنا شروع کی تھی, کچھ بحثیں اگر پرانی ہوتی ہوئی دکھلائی پڑتی تھی, کچھ بحثیں جو ریفرنس کے باہر ہو گئی تھی, لگتا ہے کہ وہ ساری بحثیں پھر لوٹ آئیں گی. کیا پاکستان میں اتنی کمزوری آ گئی ہے, پاکستان اپنے فاؤنڈیشنل جو تھیم تھے وہ اگلی پیڑھی میں وہاں ٹرانسفر نہیں ہو پا رہے ہیں, شاید اگلی پیڑھی انہیں مان نہیں رہی ہے. میرے خیال سے اس میں اشتیاق صاحب کی جتنی تھیسس ہے اور جتنا ان کا ڈیپ ورک ہے محمد علی جناح کے بارے میں, تمام چیز, اس سے تو پروو ہوتا ہے کہ نیا پاکستان جو بن رہا ہے اس میں دوسرے طرح کا ماحول بھی بن رہا ہے. ایسی بات نہیں کہ پرانا پاکستان ختم ہو گیا ہے, جناح کے ماننے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں, وہ راستہ نہیں رہ گیا ہے, لیکن ایک نئے سوالات اور ایک نئی زندگی بھی شروع ہو رہی ہے. تقسیم ہند 1947, دا بلڈی پارٹیشن آف پنجاب, تنازع کشمیر 1965 کی پاک بھارت جنگ, سانحہ مشرقی پاکستان اور بھارت کا کردار, خالصتان موومنٹ اور آپریشن بلو سٹار, اٹل بہاری واجپئی کا دورہ لاہور اور کارگل جنگ, انڈین پارلیمنٹ پہ حملے, ممبئی حملے, بالا کوٹ پہ بھارتی حملہ, کلبھوشن یادیو اور بلوچستان, تنازعات اور الزامات میں امن کی تلاش. واچ انڈو پاک ڈائلاگ ود ڈاکٹر اشتیاق احمد اینڈ لیڈنگ وائسز فرام انڈیا. ٹاکنگ پالیٹکس آن فیڈرل پوسٹ. السلام علیکم, میں ہوں حسن ظفر. یہ ہے ٹاکنگ پالیٹکس کے اسپیشل ایپیسوڈ انڈو پاک ڈائلاگ جو ہم کرتے رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے یہ ہندوستان سے دوست موجود ہیں, ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب موجود ہیں. سب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ یہ جو کولگرام میں واقعہ ہوا ہے جس پہ ہمیں افسوس ہے, مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, اینڈ وی آر ویری سیڈ اباؤٹ اٹ. یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جو پچھلے 6 مہینے سے ہمارے ساتھ مل کے پیس ٹاک کرنے کی بات کر رہے ہیں, دونوں نیشنز کو, ہندوستان پاکستان کو پاس لانے کی بات کر رہے ہیں. اور اس سارے ماحول میں ایسا واقعہ ہو جائے تو اٹ واز سورس آف کلیکٹیو پین فار آل آف us, which we have been sharing, and it is so sad.
आई डोंट नो कि राकेश वैद साहब, राजन खन्ना साहब हैं, प्रोफेसर दीपक मलिक साहब हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, डॉक्टर साहब और प्रोफेसर परमिंदर सिंह, प्रोफेसर परमिंदर सिंह, जी। ऑफ कोर्स सर. सो ये सर, आई डोंट नो वेयर टू बिगिन सीरियसली. जो भी हुआ उसके बाद इंडिया ने एक रिस्पांस दिया, इंटर वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, एंड टुडेज डेवलपमेंट इज इन रिस्पांस, और इफ यू लाइक टू से इन रिटेलिएशन टू ये इंडस वाटर ट्रीटी वाले पे पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया. ये है जी हमारे 70-80 साल की कमाई जो आज हमारे सामने रखी हुई. We came to some agreements. We decided not to go to war. शिमला एग्रीमेंट पढ़ें, bilaterally होगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाएगी. We have signed these agreements in our blood. हमारे बच्चों के खून में लिखे हुए ये agreements, treaties हैं. And here we are after 70-78 years, mourning the deaths on both sides and preparing for more, God knows what. I don't even want to say it or even imagine it. डॉक्टर साहब, प्रोफेसर परमिंदर सिंह साहब, आपसे तो मोर रिसेंटली बात हुई है. उस वक्त क्या माहौल था आज से एक हफ्ता पहले, एंड हियर वी आर, दिस इज वेयर वी स्टैंड. खन्ना साहब, राकेश वैद साहब, प्रोफेसर मलिक साहब, I really don't know. डॉक्टर साहब, I think you should take the lead. आप बात आगे बढ़ाइए. देखें, वेरी वेरी ट्रेजिक ये जो हुआ है, और इसको विदाउट एनी रिजर्वेशन हमें कंडेम करना चाहिए. लेकिन साथ साथ जब तक एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं आ जाता कि ये किसने करवाया और कैसे ये हुआ, we should suspend our ultimate verdict on this. जो मुझे नजर आता है, और मैंने बार बार अपनी वीडियोस में भी कहा है कि had आसिम मुनीर made such a provocative speech, उसके बाद अगर ये इंसिडेंट होता उस स्पीच के बगैर, तो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोकली भी वहां पे टेररिज्म कश्मीर में होता रहता है. लेकिन इस स्पीच के बाद वहां पे लोगों को कहा जाए कि आप अपनी वो पेंट खोलें और दिखाएं कि इफ यू आर सर्कमसाइज्ड, कलमा पढ़ें. सो जो पॉपुलर माइंड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तो यही है कि पाकिस्तान के जनरल हैज ऑर्डर्ड दिस. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु fully subscribe to that, but if that is proven, then it is extremely dangerous and irresponsible. तो आज ये जो हमने साथी लाए हैं, इन सब का अपना अपना ओपिनियन है, और मैं चाहता हूँ कि इसको, क्योंकि राकेश वैद साहब 50 दफा पाकिस्तान आ चुके हैं, एंड ही इज इंडिया पाकिस्तान एम्बेसडर मैं समझता हूँ पीस का. और राजेश खन्ना हैज रिसेंटली बीन टू लाहौर. इनसे हम शुरू करें और फिर प्रोफेसर दीपक मलिक और प्रोफेसर परमिंदर सिंह के ओपिनियंस को लेते हैं. ठीक है, जरूर. राकेश वैद जी. जी, पहले आप सबको नमस्ते, आदाब जफर साहब. अब मैं पहले कहाँ से शुरू करूं? एक उर्दू का शेर है, किसी को अपनी जरूरत ना हो तो क्या कीजिए, निकल पड़े हैं सिमटने कज़ा की बाहों में. अब कज़ा की बाहों में शायर तो लिख गया, पर मैं तो कज़ा की बाहों में सिमटने को तैयार नहीं हूँ. प्रोफेसर साहब, इश्तियाक साहब ने बहुत सही बात बोली. ये एक वन ऑफ इंसिडेंट होता तो मान सका. जब जनरल मुनीर की जो स्पीच है, आज़ादी के 78 साल के बाद पाकिस्तान को सहारा लेना पड़ता है हिंदू नफरत का टू मेंटेन इट्स ओन सॉवरेनिटी. यानी कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इट्स सबसर्विएंट टू द हेट ऑफ इंडिया. इट डिपेंड्स ऑन हेटिंग हिंदू. इफ यू अलाउ मी, I would like to play a small clip
with your permission of the speech, ताकि हमारे listeners को थोड़ा perspective समझ आ जाए. If you allow me, please. Please, yes, go ahead. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. अब ये देखिए, मैं भी सियालकोट से आया हूं. मुझे कोई हिस्टोरियन बताए कि जब अंग्रेज यहां पर थे, पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए कौन पाकिस्तान का कायद लीडर एक दिन भी जेल में रहा. एक दिन भी मुझे बताइए किसी सड़कों पे बॉम्बे में, लखनऊ में, मेरठ में, लाहौर में, रावलपिंडी में 5,000 लोग निकले उस सड़क पे कि हमें पाकिस्तान चाहिए. पाकिस्तान जैसे बना वो इश्तियाक साहब की किताब में दर्ज है, हमें मालूम है. वो जो हेट 1947 में फैलाई गई, जो कत्लेआम वो हुआ, वो अब तक पाकिस्तान याद नहीं कर पा रहा, भुला नहीं पा रहा. ये जो स्पीच है, ये स्पीच जड़ है कि हमें फ्यूचर में अब क्या मिलने वाला है. अब बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान 78 साल के बाद बताते हो. ये एक रोष है, एक दिल में है कि पाकिस्तान किस तरह से चलेगा. एक सॉवरेन कंट्री को, अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, आप बच्चों को पीछे की नफरत बता रहे हो. तो ये प्रॉब्ली इन द फर्स्ट सेगमेंट आई वुड ओनली से आई एग्री विद प्रोफेसर इश्तियाक. This speech is being seen in India as a signal to the sleeper cells that go ahead, activate yourself, and here we go. Although there is no direct proof of Pakistan's involvement right now, but circumstantial proofs are there. And LET, one of the offshoots of LET, they have taken the responsibility. तो अगर आज भी LET के लोग वहां पे लश्कर तैयबा के दंदना रहे हैं और सड़कों पे घूम रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वेयर इज द पीस, वेयर इज इवन द चांस ऑफ पीस. तो पाकिस्तान को ये फैसला खुद करना पड़ेगा कि लीग ऑफ नेशंस में वो अपना क्या मुकाम चाहते हैं. क्या वो चाहते हैं कि दुनिया में वो पहचाने जाएं एक टेरर कंट्री, एक FATF की गिरफ्त में आए हुए कंट्री, एक कंट्री जिसके पासपोर्ट की वैल्यू गिरती जा रही है, एक पासपोर्ट जिसको देखते ही अलग लाइन में किया जाता है. क्या चाहता है पाकिस्तान? ये पाकिस्तान को फैसला खुद करना है. एंड नंबर 2, यह पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना है कि जो वर्दी वाले हैं, जो फौजी हैं, उनका काम है सरहदों की हिफाजत करना. इक़्तिदार में आने का उनका कोई काम नहीं है. जब तक पावर कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान में फौजी रहेंगे तो हमको क्या मालूम जफर साहब किससे बात की जाए. नवाज शरीफ आ भी जाए, इमरान खान आ भी जाए, तो उनकी औकात क्या है? एंड दे आर एब्सोल्युटली पॉन्स. ये नैरेटिव भी बदलना है पाकिस्तान को. ये अपनी ग्लोबल परसेप्शन पे काम करना पड़ेगा, हिंदुस्तान से मिलकर काम करना पड़ेगा. आज शिमला एग्रीमेंट की औकात क्या रह गई थी? कुछ भी नहीं रह गई थी. शिमला एग्रीमेंट उन्होंने खत्म कर दिया. वो मोर देन हैप्पी है हिंदुस्तान तो इस समय बहुत खुश होगा कि चलो एक बंधन और कटा. एक मिस्टेक हमने करी थी शिमला एग्रीमेंट की, वो होना ही नहीं चाहिए था उस समय. अब उसका भी पास नहीं रखोगे. अब ये देखिए, थोड़ी सी शराफत की बात देखिए. 65 वार, 71 4, कारगिल, सब लड़ाइयां हुई. कभी तंग किया, कभी टिंकर किया ट्रीटी के साथ? नहीं. treaty remained in place, and this treaty has endured such a long time, has endured 3-4 wars. तो अब हिंदुस्तान में एक्सट्रीम स्टेप जो लेना पड़ा है, वो एक्सट्रीम स्टेप ये लेना पड़ा कि पाकिस्तान की जनता को भी, आवाम को भी जाना चाहिए. उनके आना चाहिए कि उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो नेता हैं, वो क्या सिंसियर है अपने मुल्क की तरफ, कि उनको अपने कॉफर्स बनने हैं, अपनी जमीनें इकट्ठी करनी है. तो यहाँ पर तो जफर साहब बहुत रोष है. यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट जाए या कुछ भी जाए, हिंदुस्तान को अब एक यकीन चाहिए पाकिस्तान से. टेरर इन एनी ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल. नो कॉज इज एनफ to justify terror. Terror is zero tolerance in India right now.
اور ہوگا کیا کہ اگر پاکستان میں ریلیجیوسٹی بڑھتی جائے گی تو ہمارا رائٹ ونگ بھی پورے حق میں ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسل فلیکس کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ سمجھے وہ ایک ڈیموکریٹک جمہوری کنٹری ہے, اس کے اوپر راج کرنے کا حق, ان کی گورنمنٹ چلانے کا حق صرف جمہوری گورنمنٹ کو ہے. ہم جمہوری گورنمنٹ سے ڈیل کر لیں گے. ہم پاکستان کی آرمی سے ہندوستان نہ ڈیل کر پایا نہ کر پائے گا. کوشش بھی کی گئی بڑی بڑی, پر ہر کوشش ناکام ہوئی. تو دیٹس مائی فرسٹ ٹیک. ٹھیک. کھنہ صاحب جی ہاں جی, اپنے کھنہ صاحب. اپنے تاثرات بتائیں. ہاں جی راجیش, دیکھیے, راجن آپ کی بات ہو رہی ہے. ہاں دیکھیے, یہ جو عصیم منیر کی جو سپیچ ہوئی نا, یہ قسم کی دیکھیے کہ ایک بہت بڑا ایک واٹر شیڈ سپیچ تھا. کن کارنوں سے اس نے یہ کی, یہ تو جی ایچ کیو راولپنڈی کو زیادہ معلوم ہوگا, ہم اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, وہ کانسیکوینسز بہت زیادہ آنے والے سمے پہ بھی دیکھنا, اس کی گونج بہت زیادہ دونوں پورے سب کانٹیننٹ میں رہے گی. ڈاکٹر اشتیاق احمد اور میں, ہم بہت, ہمارا آپس میں رابطہ ہے, ہم ایک ہی پیج پہ ہیں کہ ہم مانتے ہیں جو کلچر ہے اس کی سپریمیسی ہمیشہ ہی ہوتی ہے وے آف ورشپ کے اوپر, جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. تو اب بات آ گئی کہ اس سپیچ میں اس نے واپس سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ریلیجن کی سپریمیسی جو ہے کلچر پہ ہے. وہ کہتا ہے نہ ہمارے رواج ملتے ہیں, نہ ہماری بات چیت ملتی ہے, نہ ہمارے تھاٹس ملتے ہیں, نہ ہماری ایمبیشنز ملتی ہیں. یہ عصیم منیر نے بہت زیادہ اس کو لیبوریٹ کیا ہے. اب سوال آتا ہے, ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ہر چیز ملتی ہے, ہماری بولی وہی ہے, ہمارا کھانا پینا وہی ہے, ہمارا گیت سنگیت وہی ہے. ہمارے تو, میں نے تو دیکھا ہے ہماری شادیوں کے رواج بھی خالی اتنا ضرور ہے کہ ہمارے ہندوؤں سکھوں میں, اب ہندوؤں میں ہمارے کے اگنی کے پھیرے لیتے ہیں, سکھوں میں جو ہے وہ گرو گرنتھ صاحب کے جو لاواں پھیرے ہوتے ہیں, اور مسلمانوں میں جو ہے وہ نکاح پڑھا جاتا ہے. اس کو چھوڑ کر کے تو باقی ساری چیزیں تو وہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. تو سوال آتا ہے کہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھا جائے کہ خالی دیکھا جائے. اب عصیم منیر جیسے لوگ جو گلاس کو خالی دیکھتے ہیں وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ دیکھیے. اب وہ قومی نظریے کی تو یار 71 میں 1971 میں اگر ایک قوم ہوتا پاکستان تو ٹوٹتا کیوں؟ ٹھیک ہے. اور ابھی واپس وہ بات کر رہے ہیں, ہم جو ہے ہندوستان میں مانتے ہیں ہم ایک ہی قوم ہے, اور ہمارا یہ ماننا ہے ہر ویکتی کو اختیار ہے, ہر ویکتی کو ادھیکار ہے کہ آپ اپنا پرائیویٹ جو ریلیجن کچھ بھی رکھو, آپ کے گھر تک محدود رکھو. آپ کا اور آپ کے بنانے والے کا ایک ریلیشن ہے, وہ پرسنل ہے, اس کو اپنے ساتھ پاس تک رکھو. تو یہ ہماری جو ہے ایک قسم کی فلسفی ہے. اب بات آ جاتی ہے جس نظریے سے پاکستان میں یہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے, تو آپ وہ تو پھر ایک قوم تو چھوڑیے, میں تو کہتا ہوں 7 قوم ہے. بلوچ تو مانتے ہیں کہ ہم الگ قوم, آج بھی مان رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. وہ ہیں کے پی کے والے پٹھان جو کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں لینا ساتھ میں. سندھی جو ہیں وہ ابھی وہ نئی انہوں نے موومنٹ شروع کر دی ہے. اب بات آ گئی ہے سرائکی بھی جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں بہت بڑا ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے, گلگتی ویسے ساتھ میں نہیں ہے. تو پھر 7 نیشن ہو گئی وہاں پر, جس نظریے سے عصیم منیر نے وہاں پر کہا ہے. تو پھر ایک نہ رہی تو کتنی زیادہ رہی. تو بات تو وہی آتی ہے جا کر کے کہ اگر جیسے میں تو ایک میرا اپنا خود کا شعر میں پڑھوں گا, ڈاکٹر صاحب کو میں پہلے سنا بھی چکا ہوں کہ ہم نے تو کر لی تھی تیاری کوچے بسانے کی. آج ہمارے جیسے جو لوگ ہیں اتنی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہی ہے نا کہ ہم نے تو کر لی تھی تیاری کوچے بسانے کی, اہل شہر کو مگر راس آیا نہیں. تو یہ جو جنرل, ان لوگوں کو راس نہیں آیا. ٹھیک ہے. اب کئی بار الزام لگائے جاتے ہیں جی تھرڈ پاورز کے اوپر کہ باہر کے جو ملک آ رہے ہیں وہ اس میں, میں کہتا مانتا ہوں. اب اس کے بھی تھوڑی کم سمے میں بتاؤں کہ آج دیکھو کہ جب ہم نان الائنڈ تھے, بھارت پورا نان الائنڈ تھا, اور مزے کی بات دیکھے کہ جو مسلمان ممالک تھے وہ ہمارے ساتھ میں اس وقت کہ انڈونیشیا والا جو ہے وہ سہارتو تھا, اور ناصر تھا اپنا یہاں سے ایجپٹ کا, ہے نا, وہ ساتھ میں تھا. اور پاکستان بیٹھا ہوا گوروں کی گود میں, سیوٹو سینٹو. ٹھیک ہے نا. ہاں جی, یاسر عرفات بھی تھے فلسطین کے آپ کے ساتھ. یاسر بالکل وہ عرفات بات میں آیا ہے نا.
तो आज सवाल है कि हमने तो उस वक्त भी बड़ी पिछले मुसलसल कोशिश चल रही है हमारी 78 सालों से कि नहीं किस तरह से अपने तलकात बहाल हो, सारी चीजें हो। बात इधर आ जाती है कि जब आप वापस से उसी चीज को ऊपर जाओगे जो गलती उस वक्त जिन्ना ने कर दी कि मुल्क को बांटने की, बार बार उसी को इन्वोक अगर करते रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलना, उसमें से कोई ना कोई और ज्यादा इख्तलाफ ही निकलेंगे। अब ये मैं आपको एक मजे की और बात बताता हूँ। अभी मैं पिछले साल लगभग मेरे को 1 महीने के अंदर मैं कश्मीर 3 या 4 बार गया हूँ, मेरी शूट्स थी वहां पे, ठीक है। अच्छा, वहां पे एक बच्चा जो मेरा, वहां पर मैं हाउस बोट में जाता हूँ, वो छोटा बच्चा था, बड़ा प्यार उसका मेरा हो गया था। तो मैं ये बार गया तो मुझे कहता है अंकल अब तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा है, आप तो भी बार बार आओगे। तो अब सोचो मैं उस बच्चे की आंख में आंख डालकर आज बात नहीं कर सकूंगा जब जाऊंगा कि हिंदुस्तान में जो इन्होंने वहां पर तशद्दुद कर दिया है, जो मेरे वहां पर कश्मीर के भाई शिकारे वाले, हाउस बोट वाले, वहां के जो घोड़ों वाले, वहां के पिट्ठू, वहां के टैक्सी वाले, आज उनकी जो कैंसिलेशनें हुई हैं, इन्होंने क्या भला किया मेरे को बताओ आकर के, अपनी उनकी रोजी रोटी के ऊपर पैर मार करके क्या क्या हासिल क्या कर लिया इन्होंने, मुझे बताओ। पेंटें उतरवा करके आप सुन्नतें देख रहे हो वहां पे, है क्या हासिल कर लिया वहां। और उसके बाद में और अगला जो अभी हम अपने यहाँ से जो रद्द अमल आया हिंदुस्तान से, अब मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझे बताइए। अक्षरधाम हुआ उस वक्त यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं था कि यार कोई एस्केलेट ना हो जाए बात, ठीक है। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, एस्केलेट ना हो जाए बात। 26/11 का यहाँ पर मुंबई का हमला हो गया तो भी चलो एस्केलेट ना हो जाए बात, लेकिन भाई अभी तो एक हर चीज का एक अंत होता है, एक लिमिट होती है। वो हुआ, वो होना था। जब उरी पे हुआ तो उसका भी रद्द अमल हुआ, उसका सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, उसके बाद में पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ। अब ये जो हुआ है, ये हमारे जैसे लोग जो पीसनिक्स अपने आप को कहते हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मुझे बताइए हम कहां पर इनको किस चीज के ऊपर रोक पाएंगे। पाकिस्तान ने आज कह दिया ठीक है जी मैं शिमला समझौता रद्द करता हूँ, और यार शिमला समझौता तो हमेशा से पाकिस्तान के हक में था। किस मूर्ख ने, जो इनके सेक्रेटरी हैं उन्होंने उनको बोला जाकर के वजीर आजम को कि कैंसिल कर। पीएन अक्सर ने अपनी किताब में लिखा है, पीएन अक्सर इंदिरा गांधी का जो प्राइवेट सेक्रेटरी था 1972 के मुआहदे में, वो शिमला में मौजूद था। उसने कहा उस वक्त के बाद में किताब में लिखा है कि भुट्टो साहब से ये मुतालबा था कि यार ये जो बॉन्ड ऑफ कंटेंशन है ना मुल्कों के बीच में, इनको खत्म करो, कश्मीर का जो है वो स्यापा खत्म कर दो। तो उसने कहा देखो मैं आज अगर कोई इस वक्त डिसीजन लूंगा तो मैं एक डिफीटेड कंट्री का वजीर आजम हूं, मैं पाकिस्तान में वापस जाकर मुंह नहीं दिखा सकता। तो आप एक काम करिए, पहले मेरे को कुछ एक अचीवमेंट तो दो, कम से कम मैं लोगों को जाकर के कह सकता हूं वहां पर कि मैं कुछ हासिल करके आया हूं। तो 93,000 जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो वॉर उनको साथ में ले गए। और उसके बाद में उसने क्या किया कि जाके मुल्तान में मीटिंग की कि काउशेड के अंदर के भाई हम किस तरह से, हमको भले ही 1000 साल तक घास खाना पड़े, हम तो एटम बम बनाएंगे। ये उसका बाद में जो अच्छा शिमला समझौते, मुझे बताओ हिंदुस्तान का फायदा क्या था उस चीज में। जो बात उस वक्त ये थी कि भैया बायलैटरल मेन चीज ये थी जो हिंदुस्तान इन्वोक करता रहा बार बार, कि जब पाकिस्तान बैरल कौमी जो फोरम्स पे जाके कहते थे कश्मीर का कोई अपने को बातचीत करनी है, तो हिंदुस्तान हमेशा कहता था कि हम इसको शिमला समझौते की रूह में, मतलब बायलैटरली इसको सेटल करेंगे। अब बायलैटरल बात तो रह ही नहीं गई, बायलैटरल बात ही खत्म हो गई। कहाँ बायलैटरल मेरे को बताइए रह गई। उस वक्त सूट करता था इनको, यूएसए को, कि रशिया जो है वो वार्म वाटर तक ना आ पाए। आज उनको सूट ये कर रहा है कि चीन जो है वो सी पैक के माध्यम से ग्वादर तक ना जा सके। तो पूरी इंटरनेशनल इक्वेशन चेंज हो चुकी है। तो इसमें कोई मुआहदा वगैरह इनका किसी प्रकार का कोई वजन नहीं रह जाता। ये मुआहदे तो साहब सारे ही खत्म हो गए। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने मुआहदे बने थे आपने देखे, WTO एंड हो गया, UNO एक बस टॉफियां खाने के लिए चले जाएं वहां पे, तो कोई सूट पहन कोई फोटो सेशन करा लें, उससे ज्यादा वो क्या डिबेटिंग क्लब ही है ना UNO, नथिंग हैपेंस देयर। सो वी नाउ मूव टू, आप बताएं प्रोफेसर दीपक मलिक से या प्रोफेसर परमिंदर सिंह से, जो जिनको आप चाहें। प्रोफेसर परमिंदर सिंह साहब, ये
जी 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 आप बोलिए प्रोफेसर परमिंदर सिंह जी, जी। सबसे पहले तो मैं जो पहलगाम में हुआ है दैट्स कंडेमनेबल, बहुत साफ बात है। इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है और कोई आपकी जिंदगी गोली से ले ले, उससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। एक तो ये बात बिल्कुल आपको साफ लफ्जों में कंडेम करनी चाहिए। सारा कुछ देखकर जैसे वो लोगों को मारा गया है, मन में दुख होता है उस बात का। दूसरी बात ये है कि जो पहले डॉक्टर साहब ने कहा है कि विदाउट एनी क्लिंचिंग काइंड ऑफ एविडेंस, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा आगे किसी को जाना नहीं चाहिए। मैं उसके एक कारण बताता हूँ आपको। उसका रीजन ये है कि वी द पीपल हु आर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट are anyway facing a number of problems in terms of poverty, unemployment, economic crisis, and many more things are there. I'm just counting 2-3 things, but many more things are there. And our first priority should be to have peace in our own subcontinent. ये पहली प्रायोरिटी चाहिए। किसी भी तरह का शॉविनिज्म जो इस खित्ते में जंग के बादलों को लेकर आएगा, वो हमारे दोनों मुल्कों के लोगों के लिए खतरनाक है। सो वी मस्ट टॉक अबाउट पीस ओनली, एंड ये बात दोनों मुल्कों से उठनी चाहिए। मैं तीसरी बात के साथ कहना चाहता हूं, उल्दो ये बात कहनी बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान के जर्नैल ने बोला है वो अपने तौर पर politically, historically, and logically, and even at the level of human beings also, culturally also, that's absolutely wrong statement. Absolutely, there's no doubt about that. लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात जरूर कहनी चाहिए कि जैसा माहौल पिछले कई बरसों से हमारे दोनों मुल्कों में चल रहा है, कैन वी से फॉर श्योर कि दोनों मुल्कों से ऐसी आवाजें नहीं उठ रही हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सी आवाजें हिंदुस्तान से भी उठती हैं, एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दोज वॉइसेस आल्सो, और उन वॉइसेस को भी गलत कहना चाहिए। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने 2 सिचुएशंस देखी हैं और काफी सिचुएशंस लोगों ने पंजाब के बाहर भी देखी हो। जो पहलगाम में हुआ उसमें एक तरफ आपके टूरिस्ट का जो कत्ल हुआ और दूसरी तरफ उनकी सपोर्ट में वो जो पोनी वाला था, जैसे उसने सभी को डिफेंड करने की कोशिश की, दैट्स रिमार्केबल कि आप अपनी जान पर खेल कर अपने साथ वाले जिनको साथ लेकर गए हैं, आप उनको अगर बचाने के आगे जा रहे हैं, और जैसे कश्मीर में टेररिज्म और इस तरह के एक्शन की मजम्मत हुई है, वो बात बहुत फोरग्राउंडिंग करनी चाहिए उस बात। ये इट्स नीड ऑफ द आवर। ऐसे ही हमारे पंजाब में 80s में बहुत कुछ होता रहा था। एट दैट टाइम ऑल्सो एंड वी हैव बीन फोरग्राउंडिंग दोज इंस्टेंसेस वेयर वी फाउंड द पीपल ऑफ अदर रिलीजन कमिंग टू द फोर डिफेंड द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स। ऐसी बातें हिंदुस्तान के बहुत लोगों, बहुत हिस्सों में ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन जो फोर्सेस हैं, जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं दोनों मुल्कों की, जो राइट की फोर्सेस हैं, वो जो डिवाइड करके यहाँ पर जो एक अल्ट्रा शॉविनिस्टिक माहौल बनाना चाहती हैं, जो जंग का माहौल है, वी मस्ट अपोज, वी मस्ट ट्राई टू से दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर शुड नॉट बी क्रिएटेड। हमको ये कहना चाहिए और जोर से कहना चाहिए। बात ये नहीं है कि आप किसकी स्टेटमेंट को कंडेम करते, किस स्टेटमेंट को कंडेम नहीं करते। बात ये है कि अगर दोनों मुल्कों में एक इंसिडेंट की बेसिस पर अपने मुल्क में शॉविनिस्टिक और कम्युनल माहौल मजबूत हो रहा है और दूसरे मुल्क के उस मुल्क के स्टेटमेंट के बायस यहाँ पर कम्युनल माहौल और शॉविनिस्टिक माहौल मजबूत हो रहा है, ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंस्टेड ऑफ dissecting what somebody said, what somebody didn't say, instead of dissecting all those things, we must all talk about peace. इस वक्त इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।
प्रोफेसर दीपक मलिक साहब। जी, हम तो हिंदुस्तान के जिसे कहते हैं हार्टलैंड से आते हैं, बनारस से, और जो पहलगांव में वाकया हुआ वो अगर कुछ चीजें हमने भूलना शुरू की थी, कुछ बहसें अगर पुरानी होती हुई दिखलाई पड़ती थी, कुछ बहसें जो रेफरेंस के बाहर हो गई थी, लगता है कि वो सारी बहसें फिर लौट आएंगी। अब हमारे हिंदुस्तान में तो एक बड़ा मुल्क है, अलग अलग सूबे हैं, हर सूबों में अलग अलग रिएक्शन है अपने तरीके से। हमारे उत्तर प्रदेश में आज़ादी के पहले 30s, 40s, 20s में डेफिनेटली एक मुस्लिम पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा दबाव था, और उतना ही एक डेवलपमेंट था यहाँ जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टेट्समैन का भी उभरना इसी सूबे से। तो एक रिप्लाई भी बनता था, एक जवाब भी बनता था। दोनों, हिंदू महासभा भी बनती थी और मुस्लिम लीग भी बनती थी। ये सब चीजें कहीं न कहीं एंटिक्विटी में एक पुराने वक्त में दफन होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। खैर, नए कम्युनल सवालात भी उठ रहे थे नए तरीके से, लेकिन फिर भी एक इतना संतोष तो था कि एक जिसे कहते हैं थॉ कहा जाए, एक हद तक एक अमन का एक वातावरण जो है, एक अमन का वातावरण वो बन रहा था। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जिसका जिक्र परमिंदर साहब ने किया, कम्युनल फोर्सेस को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि आखिर वो अगला चुनाव किस सवाल पे लड़े। अब तो उनके लिए बड़ा ऑटोमेटिक सवाल मिल गया, उनके लिए तो बड़ा भारी एक उनकी गिफ्ट आ गई एकदम से। नंबर 1 एक ये बात कहना। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि मुनीर साहब का जो बयान है, क्या पाकिस्तान में इतनी कमजोरी आ गई है कि पाकिस्तान अपने फाउंडेशनल जो थीम थे वो अगली पीढ़ी में वहां ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। शायद अगली पीढ़ी उन्हें मान नहीं रही है। मेरे ख्याल से इसमें इश्तियाक साहब की जितनी थीसिस है और जितना उनका डीप वर्क है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, तमाम चीज, इससे तो प्रूव होता है कि नया पाकिस्तान जो बन रहा है उसमें दूसरे तरह का माहौल भी बन रहा है। ऐसी बात नहीं कि पुराना पाकिस्तान खत्म हो गया है, जिन्ना के मानने वाले लोग खत्म हो गए हैं, वो रास्ता नहीं रह गया है, लेकिन एक नए सवालात और एक नई जिंदगी भी शुरू हो रही है, और वो होनी भी थी। तो क्या मुनीर साहब का कहना है, मुनीर साहब के बयान से ये कुछ पता नहीं लगता है कि शायद पाकिस्तान में कुछ भीतर भी इस तरह के बदलाव आ रहे हैं कि वहां पर आर्मी चीफ को ये कहना पड़ रहा है कि अगली पीढ़ी याद रखे कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल से अलग अलग कौमें थीं और उनको अलग तरीके से रहना चाहिए। तो ये तो कहीं कमजोरी भी दिखलाती है एक नेशन और स्टेट। और जो दूसरी बात हमारे साथियों ने कही है कि क्या हेट के ही सहारे हम एक नेशन स्टेट को बनाएंगे, कायम रखेंगे? क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है? शायद पाकिस्तान में ये सियासत, ये राजनीति बहुत लंबी चली। हमारे यहाँ ये राजनीति शुरू हो गई है अभी पिछले 10-12 साल से, मजबूती से। उसके पहले भी थी लेकिन कम थी, कमजोर थी, छोटी थी। अब हमारे यहाँ भी एक मजबूती से आई है। हम तो कहते हैं एक तौर से कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तानाइजेशन हो रहा है एक तौर से, उसका उनकी नकल उतारी जा रही है। लेकिन कितना नकल उतारेंगे? हिंदुस्तान बड़ा भारी मुल्क है, बड़ा डाइवर्सिफाइड है, और बहुत ज्यादा नकल करने की कोशिश करेंगे तो मुल्क में बिखराव आ जाएगा। ये चलेगा नहीं, ये कर नहीं पाएंगे। इस तरह से कम्युनलाइजेशन पूरे तौर से कायम नहीं हो पाएगा। वो उसके बेसिक ग्राउंड्स एब्सेंट है। तो एक दो चीज, ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये कि दुनिया अभी टर्मोइल में है।
ट्रम्प साहब पता नहीं क्या करेंगे। कम से कम 45 के बाद जो दुनिया बनी थी उस पूरी दुनिया को उन्होंने उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। खैर, इसमें पूंजीशाही का जो खत्म होना है वो भी दिखलाई पड़ता है। ट्रम्प साहब की जीत अगर अमेरिका में हुई तो इस वजह से भी हुई कि रस्ट बेल्ट में लोग चाहते हैं, जो बाहर नौकरियां चली गई थी वो नौकरियों को लौटाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लौटाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो हो नहीं सकता है। ये ख्याली पुलाव हैं। और शायद ट्रम्प साहब को न इकोनॉमिक्स का से कोई बहुत ज्यादा रिश्ता है, न एक पॉलिटिकल जो हालात हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेसेस चलती हैं उनके बारे में ही उनको बहुत कोई अंदाज है। केवल एक ऐट है, एक बड़े मुल्क के सदर होने के कारण एक ये है कि दुनिया में और कुछ है नहीं, हम ही हैं, हम फैसला कर लेंगे जिधर चलेंगे। लेकिन उसका जो नतीजा हो रहा है वो काफी उलटफेर हो रहा है, काफी काफी कुछ हो रहा है। कुछ चीजें अच्छी भी होंगी मेरे ख्याल से। यूरोप कम से कम आजाद हो जाएगा। यूरोप को मैं नियो कॉलोनियल मानता हूँ लगभग। एक नियो कॉलोनियल गुलामी में यूरोप चल रहा था। अमेरिका से हो सकता है टूट जाए रिश्ता, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये इस ऐसे हालात में ये जो बातें हुई मुनीर साहब और पहलगांव, हम सोचते थे कि शायद हम इससे निकल जाएंगे और हम अपना रास्ता खोज लेंगे और शायद हम इसमें कुछ फायदा भी उठा लेंगे, इस उहापोह में, इस दौड़ में कहीं हम कुछ कर लेंगे। हम शायद एक जो थोड़ा बेहतर एक दुनिया की कल्पना करते थे, एक हमारे अंदर एक ख्वाहिश थी कि एक नई दुनिया बने। पूरा तो नहीं, पूरा कभी होता भी नहीं उस तरह से, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हुई, ये जो वाकयात हुए, ये वाकयात ने वो सारी प्रोसेसेस को और सारे हमारे जो जो एक हमारी जो ख्वाहिशें थी उनको बहुत तोड़ दी हैं। और हम फिर उस गहरे पानी में लौट रहे हैं जहां से हमने अपनी यात्रा, अपना अपना ट्रेवल, अपना सैर शुरू किया था, अपनी जगह शुरू की थी, अपना आगे बढ़ना शुरू किया था। तो मैं तो कहूँगा ऐसे वक्त में, और हम सभी लोग यहाँ पर और इश्तियाक साहब खास तौर से, सब लोगों ने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़े सेक्शन में, मैं नहीं कहता हूँ नॉट इन द अमंग्स्ट द मासेस पूरे तौर से, लेकिन एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में एक नया माहौल बना रहे थे। वो माहौल टूट रहा है और इसका हमें बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। और मैं समझता हूँ कि हमको भी कोई रास्ता नहीं दिखलाई पड़ रहा है। एक ये बात मैं परमिंदर साहब की दोहराना चाहूंगा कि बड़े मजबूती से हमको दोनों, मुनीर साहब की बात और पहलगांव की बात, दोनों पे एक बड़े पैमाने पे, एक मूवमेंटल पैमाने पे इस बात को हमको कंडेम करना चाहिए और बड़ी से बड़ी जमात के पास ये बातें रखनी चाहिए कि हम तो एक नया तवारीख बना सकते थे। दौर बड़ा खराब है पूरी दुनिया के माहौल में, लेकिन इस वक्त उस नए माहौल को, या अगर हम टिक जाएं किसी तरीके से, हमारे पैर न उखड़ जाएं, तो हम शायद आ, 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 कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसे वाकयात होते जा रहे हैं जो हमको भी उसी गहरे पानी में ढकेल दे रही हैं। हमको उससे बचना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं रह गया है, सिर्फ इसके कि हम हमारे अवाम के बीच में, हमारे इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, इंटेलिजेंसिया के बीच में, जो पिछले
78 साल में जो हमारी एक इत्तेहाद की बात बनी है, जो एक छोटा सा सेक्शन भी अगर बना है कहीं कुछ, तो उसको हम कायम रखें और इस बात को हम जितना आगे बढ़ा सकें उसको बढ़ाएं। मैं तो सर ये अर्ज करना चाहूँगा, 3-4 चीज़ें आपके सामने रखते हैं। एक तो सबसे पहले तो प्रोफेसर मलिक साहब, होप लूज कर ना कीजिए। जब तक ये लोग सर जोड़ के बैठे हुए हैं, इस माहौल में भी अगर बैठ के आपस में बात कर रहे हैं तो बहुत उम्मीद बाकी है। सो आई एम नॉट लूजिंग होप। दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स ये दो अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है, तो ये कि जनरल मुनीर साहब की स्पीच को आप आइडियोलॉजिकली फिलोसॉफिकली जैसे चाहिए एनालाइज कीजिए, आपका राइट है, लेकिन उससे पाकिस्तान इम्प्लिकेट किया जा रहा है ये पहलगाम वाले इंसिडेंट के साथ। हालांकि दोनों चीज़ों का, आई मीन इफ यू वांट टू पुट द रिमोट थिंग्स टुगेदर, ये कोई एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इट साउंड्स लाइक अ लॉन्ग शॉट, वेरी लॉन्ग शॉट। तो इसको मेरा ख्याल है कि इसमें एक बेहतर तजवीज़ हमारे सामने आई थी। हालांकि जहाँ पे अब ये सारे हमारे हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज वो बेमानी हो गई हैं, उसमें बहरहाल ये तजवीज़ तो बड़ी मजबूत है कि एक जॉइंट कमीशन अगर बन जाता है दोनों मुल्कों का टुवर्ड्स टेररिज्म, कि अगर पाकिस्तान में कुछ होता है या हिंदुस्तान में कुछ होता है तो बोथ कंट्रीज को उसका मैकेनिज्म बनता ताकि ये आए दिन का झगड़ा खत्म हो। लेकिन मैं पर्सनली जो एक चीज़ मैंने फील की, राकेश वैद साहब, परमिंदर सिंह साहब, प्रोफेसर मलिक, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और हमारे खन्ना साहब, वो ये कि वाकई यहाँ पे सबने कंडेम किया, अफसोस का इजहार किया। फ्रांस में एक वाकया हुआ था थोड़े दिन पहले, पाकिस्तान में सब ने अपने फेसबुक पे फ्रांस का झंडा लगा लिया। कहीं और वाकया होता है, गजा में होता है, किसी और जगह होता है, अफसोस का इजहार करते हैं। हमने नहीं देखा ऑनेस्टली, और ये तकलीफ की बात है कि हमारे यहाँ जब इस किस्म के वाकयात, अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, हमने ये भी देखा लोगों ने उसके ऊपर ताने कसे पाकिस्तान के ऊपर। हमने ये देखा कि जिन्हें हम बरादर इस्लामी ममालिक कहते रहे, उनकी तरफ से कभी कोई अफसोस का इजहार, कभी कोई कंडेमनेशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट ऑन पाकिस्तानी सॉइल, it was always translated as an act of our own doing, यानी कि हमने ही ऐसा कुछ कर लिया है कि हम अपने ऊपर बम मारते हैं उसके जवाब में। अफसोस का इजहार कहीं से नहीं आया, which is very sad. I personally feel very अब इसमें ये देखिए, ये एक अगर ये आज मेरी अकेली की फीलिंग है, कल को यहाँ पे और लोगों के अंदर भी ये होगी फीलिंग, if it turns out to be a collective feeling amongst Pakistanis that we have been cornered, sidelined because of whatever historical reasons, the way big powers have played in our neighborhood. यहाँ का नैरेटिव और यहाँ की सोच भी समझने की ज़रूरत है कि we have been exploited. चलिए उसमें हमारे अपने लोगों का जितना कोई अच्छा फैसला, गलत फैसला, वो भी शामिल कर लें, but the way big powers have played their game in our neighborhood, और जिसका हमारे ऊपर सारा असर आया सोसाइटी के ऊपर, एंड द वे आफ्टर 9/11 तो वो फंडामेंटलिज्म का एक ऐसा किस्सा शुरू हुआ, और उसके बाद सारी दुनिया में, मतलब आई डोंट सी, आप तशरीफ लाइए राकेश वैद साहब, आप तो आते जाते रहते हैं, खन्ना साहब भी आए थे, डॉक्टर साहब भी आते हैं, रिलीजियोसिटी नहीं है यहाँ पे। जो एलईटी, लश्कर तैयबा, सिपा साहबा और जितने भी नाम आप ले लें, सारे मिलके एक एमपीए की, एक एमएलए की, जोशी साहब एमएलए कहते हैं, एक सीट ये सारे मिलके भी नहीं जीत सकते, इनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जैसे प्रोफेसर सिंह ने, परमिंदर सिंह साहब ने कहा कि आपके यहाँ आरएसएस की एक हैवी, एक रिलीजियस जमात की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यू कैन नॉट डिनाई इट। ये गुजारिशात हैं जी। राकेश साहब अब चलिए, मैंने सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत एहतराम के साथ डिफर करूंगा। हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ जो जिसको आप बोलते हैं सो कॉल्ड रिलीजियस जमातें,
वो आपके यहाँ पे जरूरत नहीं है। यू आर ए कंट्री विद सिंगल रिलीजन। आपका लिखा हुआ है कि कोई भी चीज, कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के बाहर नहीं होगा। आपके यहाँ पे हर जमात अल्लाह के नाम पे वोट मांगती है, प्रॉफिट के नाम पे वोट मांगती है। आपके यहाँ पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी जमात इस्लामी को वोट दो ना दो, the entire system is based on a single religion. Nobody can defy that. तो उनको वोट मिले या ना मिले, it doesn't matter. पर हमको ये देखना है कि मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ एंड मुझे अब लगता है कि पाकिस्तान के जितने लोग बाशऊर मैं मिलता हूँ, देखता हूँ, बड़ा लिबरल सोसाइटी देखता हूँ। हर पार्टी में जाता हूँ, शराब मिलती है, अब खाना पीना मिलता है, हर चीज मिलती है, लोग बड़े सुख से जीना चाहते हैं। अब इन सुख के जीने वाले लोगों को जफर साहब मालूम होना चाहिए कि तर्ज हुकूमत क्या है। तर्ज हुकूमत बंदूक वाले नहीं है। ये तर्ज हुकूमत पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा। लाहौर की डिक्लेरेशन या एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने कैंसिल किया, अच्छा किया। उसी में था कि हमारा बायलैटरल है, जैसे अभी सर बोल रहे थे खन्ना साहब, पाकिस्तान ने आज तक कोई मौका छोड़ा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा 40 मिनट या 25 मिनट प्रोटोकॉल तोड़ के इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी। तो वो एग्रीमेंट्स बेकार थे। दिल से दिल के मिलाप के लिए जितनी कोशिश काविशें आपने कर रहे हैं जफर साहब, इश्तियाक साहब करते हैं, मैं जाके करता हूँ, यहाँ मुझे गालियां भी पड़ती हैं, तुम जाते क्यों, तब भी जाता हूँ। हमारी सब काविशें वो खत्म हो गई हैं स्पीच के बाद। This speech has given a new dynamics to the whole relationship between India and Pakistan. ये speech कोई ordinary speech नहीं है। जिस गम को मैं भुला कर आया था, my father's sister brutally murdered, butchered, raped. My elder sister was same fate. My dada was found at Saharanpur station in 3 pieces. ये सब बातें हम भूल चुके थे, भूलना चाह रहे थे, पर अब क्या याद कराया जा रहा है? ये स्पीच याद कराई जा रही है कि राकेश, तुमको नहीं भूलना कि 2 बेगोवाला से उजाड़े गए थे। जिस शहर में, जिस नगर में, जिस बस्ती में तुम्हारा 1685 का शजरे का पत्थर लगा हुआ है, वो कहता तुम तो हमारे जमीन के थे ही नहीं, तुम्हें तो हमने उजाड़ दिया। ये मेच्योरिटी चाहिए जफर साहब। पाकिस्तान में बहुत बाशऊर लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा मुल्क चलाने के कुछ तरीके होते हैं। Pakistan has to become a normal state. Pakistan is not a normal state. It's an ideological state. चाहे इजराइल भी दुखी रहेगा। मुल्क चलाने के लिए मजहब नहीं होता, सरकार का कोई मजहब नहीं होता। You could be a Hindu, Muslim, everything, but you can't write in your constitution. See, this is the basic problem. जिस दिन पाकिस्तानी समझेंगे, उनका मतलब है। अब जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इश्तियाक साहब बताएंगे, जो इतने 50 सालों की दूरियां पाकिस्तान और बांग्लादेश की, बांग्लादेश में भी अब पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं और वहां पर भी बांग्लादेश में कत्लेआम हिंदुओं का हो रहा है और पैंट उतार के देखते हैं कि तुम हिंदू हो के मुसलमान हो। तो कुछ ना कुछ ये डायनामिक्स जो पाकिस्तान का नया लीडरशिप जो इमर्ज हो रही है, अगर वो सोचते हैं कि बंदूकों के जोर पे और फ्रेंजी बढ़ाकर रिलीजियस की कुछ पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पे क्या अटैक करेगा? हमारा एजेंडा अलग है। जैसे मिश्रा जी, मलिक जी बोल रहे थे कि राइट विंग की इमरजेंस यहाँ पर बेवजह नहीं हुई। उनको मार्जिन मिला, पूरा मार्जिन मिला। और मार्जिन देखिए हो के आते हैं वाजपेयी साहब, पीछे से कारगिल हो जाता है, उनको मार्जिन मिला। ये मोदी साहब अनइनवाइटेड पहुंच जाते हैं लाहौर में, उड़ी हुआ, मार्जिन मिला। ये जो हमारा राइट विंग है, ये राइट विंग जो है ये क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि जो आपका रिलीजियस तबका है वो सेक्युलर वैल्यूज को तर्क करता है। आपके शामी साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं उनको मैं पाकिस्तान में मिला एक दोस्त के यहाँ, तो मैंने कहा आपको सेक्युलर होना चाहिए हमारी तरह। पता है मुझे क्या बोलते हैं? इससे अच्छा तो मुझे बहुत बड़ी गाली दे देते हैं। इसे कॉलिंग ए मुस्लिम सेक्युलर इज एन अब्यूज, दिस इज द वर्ड। ये सब बदलने पड़ेंगे और ये मैं यकीन दिलाता हूँ जफर साहब, उम्मीद रही है पाकिस्तान में बदलाव आएगा। पाकिस्तान में बदलाव आएगा। ये जो
in this border treaty ہے, اس کا I hate to say but عوام پہ اثر پڑے گا. کچھ نہ کچھ تو چابی لگانی پڑے گی, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو اس کا حل کرنا پڑے گا. یہ سپیچ نے دل توڑا ہے لوگوں کا, اس سپیچ نے لوگوں کی امیدیں توڑی ہیں, اس سپیچ نے جو اشتیاق صاحب جیسے یہاں پہ آتے ہیں, اشتیاق صاحب یہاں پر آلموسٹ جسے ہندی بولتے ہیں پوجے جاتے ہیں, ہر گھر کھل جاتا ہے, ہر یونیورسٹی کھل جاتی ہے, آرمی کے انسٹیٹیوٹ کھل جاتے ہیں, بیکاز ہی ٹاک سینس. آ کے بات کرو یہاں پہ آ کے, یار دیش کو چلانا ایک اسٹیٹ کرافٹ از ناٹ ریلیجیوسٹی. اسٹیٹ کرافٹ جب تک پاکستان نہیں سمجھے گا, آپ جیسے ابھی بول رہے تھے کہ ایسے الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کیا اپریشیٹ دیٹ, پر آپ دیکھیے نا ہم کو گھیرا کہاں جا رہا ہے. جو اب آپ گھیر جائیں گے پوری طرف سے کہ آپ بولو گے یار میں تو ایسا ہی ہوں, میرے پاس تو قرآن حدیث کے علاوہ زندگی جینے کا طریقہ نہیں ہے. اور پھر یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی اگر بولا جائے گا کہ مذہبی کی اس کے سورہ توبہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں دیکھو مارو, اور وہی یوز کریں گے مولوی سلیکٹو. I understand my Muslim friends tell me کہ it is not in that context, it is not that context. پر جو آپ کا مذہب سڑک پہ آپریٹ کرتے ہیں وہ کانٹیکسٹ کی بات نہیں کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں فل اسٹاپ کامن نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں ظفر صاحب کو کسی آپ جیسے لوگوں کو آگے آ کے بولنا پڑے گا, مذہب اور اسٹیٹ کو بیچ میں سے کاٹنا پڑے گا. طرز حکومت ہوتی ہے. اگر ہم بھی یہاں پر ہندوؤں کی تو سرکار بنا کے بیٹھ جائیں اور میں لکھ دوں ہر کچھ گیتا اور رامائن کے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہیں نہ کہیں سے فالٹ لائن سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. فالٹ لائن lies not in Islam, not in Musliman. Fault line lies in one thing only. The Pakistan state should have no religion. Pakistan should run state affair. مسلمان اپنا کام کرے, جو وہاں پہ کچھ ہندو ہیں وہ اپنا کام ہے جیے, سب مل کے پاکستان کی ترقی کی بات کریں. That is the Pakistan the world wants. That is the Pakistan, that is the Saudi Arabia. That's what we all want. کہ سرکاریں کام کریں اور ہم اپنی عبادت کریں, مندر مسجد گردوارے جہاں جائیں, ہمیں فریڈم ہونی چاہیے ہر چیز کی. پر طرز حکومت میں مذہب آئے گا تو یہ ہوگا. یہ جو بات کر رہے ہیں اپنا راکیش جی, سیالکوٹ کی گل دسنا انہاں نوں. جی سیالکوٹ دے لوگ کہندے سی جے کلاڑی وچ لکڑی دا دستہ نہ ہوندا تے لکڑ دے کٹن دا رستہ نہ ہوندا. اسٹیٹ شوڈ اسٹاپ گیونگ دی اسپیسز ٹو دی ریڈیکلز. یہ تو ہو گئی, لیکن پہلگام کا جو معاملہ ہوا ہے اس کی کوئی انویسٹیگیشن کرائیں. وہ کریں گے انویسٹیگیشن, اس میں لوکل لوگ بھی انوالو ہوں گے. ہم فلی کنونس جو لوگوں نے مار کر گیا کل رات کو کہیں سوئے ہوں گے, پرسوں رات کو سوئے ہوں گے, کہیں کھانا کھایا ہوگا, they will be accomplices. وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لوکل بھی ان کے پاس ایسی پرابلم یہاں پہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ ایک آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ کے اندر ایک کرمنل ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے ہیں. سو یہ پرابلم آ رہی ہے یہاں پہ. اتار کے دکھاؤ. وہ اس نے جاتی نہیں پوچھی کہ تم سکھ ہو کیا ہو, تم ہندو ہو کہ نہیں. یہ آپ کے انویسٹیگیٹرز بیٹھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مینر آف ایکسیکیوشن کس کا ہے. یہ آئی ایس ہے, وہ آئی ایس والوں کا, یہ سارا یہ جو سیریا میں ہوتا تھا یہ تو ان کا سٹائل ہے. جی پرمیندر صاحب, I must remind you, in time of Pathankot attack, first time انڈیا نے مودی سرکار نے پروٹوکول توڑ کے they invited the ISI for investigation and they found out. اچھا ایک اور بات ہے 1999 میں بات کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھے جسٹ وانٹ ٹو اٹس اوکے اٹس اوکے. جی سر آپ بولیے پرمیندر جی. 2008 میں بھی جب یہ بامبے کا اٹیک ہوا ہے تو ہمارے جو پرائم منسٹر تھے گیلانی صاحب, انہوں نے اگری کر لیا تھا کہ جوائنٹ ہوگی اپنا انویسٹیگیشن, لیکن جنرل شجاع جو تھے ہی اوور رولڈ اٹ, تو وہ بھی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی. تو راکیش از ایبسلوٹلی رائٹ, جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جوائنٹ اگر وہ ہو انویسٹیگیشن تب بات بنتی ہے, لیکن صرف انڈیا تو نہ کرائے. جب پاکستان میں ہوتی ہے, انڈیا میں ہوتی ہے, تو پھر وہاں پہ اس کے لیے اگری نہیں کرتے. یہ میری کتاب میں نے لکھا ہوا ہے
کہ جنرل پاشا overruled the prime minister of Pakistan who had agreed کہ ٹھیک ہے جوائنٹ، بلکہ ایک بندہ آیا بھی تھا پھر انہوں نے روک لیا انہیں. تو یہ پاکستان بیسکلی پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے، بیسکلی پاکستان کی رسپانسبلٹی. ظفر ایکسپریس کی بات کری تو میں ظفر ایکسپریس کی تھوڑی بات کرتا ہوں 30 سیکنڈ اینڈ 30 سیکنڈ آرمی پبلک اسکول کے اٹیک کی. لیٹس اسٹارٹ ود دی آرمی پبلک اسکول ان پشاور. ہندوستان میں ہنڈریڈ آف اسکولز میں کینڈل جلائی گئی، پریئرز ہوئی ان بچوں کے لیے. اور جہاں تک ظفر ایکسپریس کا معاملہ ہے، ظفر ایکسپریس میں آپ نے انڈیا کو بیک فٹ پہ ڈال دیا. کنڈیمنیشن کیا کرتے، کیا سمپتی دکھاتے، ود ان 5 منٹس بلوچستان کا پورا پاکستان کی ISI اور فارن آفس نے انڈیا کو ڈائریکٹ بین کر دیا. انڈیا کو کنڈیم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. انڈیا بیکیم ڈیفینسو کہ بھئی ہم نے نہیں کیا. تو ود ان 5 منٹس دی ہول گیم. سی ہمارا ڈائنامکس ظفر صاحب آپ سمجھیے ابھی بھی ایسے ہی ہوا، 5 منٹ میں کر دیا. بٹ ڈسپائٹ آل دیٹ پاکستان کنڈیم کر رہا ہے. دوسرے ریئیکٹ نہ کریں، یہ بتاؤ ریئیکٹ نہ کریں دوسرے. ہم کرتے ہیں. ابھی ظفر ٹرین کے ساتھ ہوا تو ایک دم آپ نے کنڈیم کر دیا نا. ناؤ دا رائٹ ونگ یا جو بھی وہاں پہ ہے انہوں نے کر دیا، تو ہاؤ ڈو وی سالو دا ایشو؟ It is only by sitting together and agreeing no more terrorism, no more interference in each any other's manifestation. No cause is big enough or good enough for terror. پرمیندر سنگھ صاحب آپ کیجیے. ہاں پروفیسر صاحب بولیں. بس میں تو بہت احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لینگویج جو ہے نا، اٹس اے ویری ڈینجرس لینگویج. میں بہت سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں. یہ لینگویج ہم کو چھوڑنی چاہیے، اس طرف بھی چھوڑنی چاہیے، اس طرف بھی چھوڑنی چاہیے. جی بالکل. یہ لینگویج ہے جو ہمیں بالکل اس طرف لے کر جا رہی ہے جو ہمارے دونوں ملکوں میں خطرناک بات ہو سکتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پیس کی بات ہو، امن کی بات ہو. یہ جو شوونسٹک جنگوئزم ہے، آپ یہ باتیں میں بہت کہہ سکتا ہوں لیکن میں کہوں گا نہیں with regard to my own country. But I would not say that thing because this is not time to say all those things. There are two distinct kind of entities. دونوں طرف کی دونوں اسٹیٹس ہیں اور دونوں طرف کے عام لوگ ہیں. عام لوگ اگر جنگ ہوگی، اگر حالات بگڑیں گے تو عام لوگ پسیں گے، ان کی اکنامک کنڈیشنز اور بدتر ہوگی. میں ایک بات تھوڑی سی اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو ماحول بنا ہے وائلنس کا، جینوسائڈ کا، غازہ از اونلی ون ایگزامپل آف دیٹ. یہ جو ماحول اگر اس سب کانٹیننٹ میں اس ماحول کی طرف اگر چیز جائے گی تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. میں تو وارن کر رہا ہوں کہ پہلگام کو کوئی سین پرسن یہ نہیں کہے گا کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. پہلگام از کنڈیمنیبل، لیکن یہ کنڈیم کرنے کے بعد اگر ہم ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کو غلط کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے حالات اور بگڑیں گے. ہندوستان سے بھی کوشش ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی کوشش ہو رہی ہے. ماحول جو بن رہا ہے اچھا نہیں ہے سوشل میڈیا پر اسینشلی، اور خاص طور پر یہ بہت برا ماحول، یہ نہیں بننا چاہیے. 47 میں جو ہوا اس کا کون کلپریٹ تھا، کس نے کیا کیا، یہ بات بہت پہلے کی ہو چکی ہے. اس میں ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہیں. اس میں میں بڑے صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں if Jinnah is culprit then the people who came to rule India are also equally responsible for that. یہ بات ہسٹوریکل بات ہے. اس پہ بات کو نہیں چیک کرنا چاہیے، اس بات کو نہیں کرنا چاہیے. پچھلے بہت کچھ برسوں سے پنجاب میں خاص طور پر جو پنجاب ویسٹرن پنجاب اور ایسٹرن پنجاب، اس کے لوگوں کے بیچ میں بہت اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہم نے دیکھی ہے. چاہے اس کا میڈیم سوشل میڈیا کیوں نہ ہو، اس کا میڈیم آپ کا کلچر کیوں نہ ہو، آپ کا آرٹ کیوں نہ ہو، اس میں ہم نے دیکھا ہے. اس کو بڑھاوا دینا چاہیے. لیکن یہ جو لینگویج ہے نا کہ وہ برا ہے، یہ لینگویج مسٹ بی اسٹاپڈ.
and stopped forthwith. Absolutely. People here in this subcontinent need peace. They need peace. They don't want wars. वॉर हमने 2-3 देख ली है. वॉर से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ह्यूमन लगातार तबाही होती है और दुनिया लगातार वॉर्स देखती रही है. इसलिए पूरी दुनिया में पीस मूवमेंट की जरूरत है. जो पीस मूवमेंट जस्टिशिएबल हो, जो पीस मूवमेंट जस्टिस पर बेस्ड हो, जो पीस मूवमेंट लोगों के अपने जो उनका अपनी यूनिटी है, उनका जो अपना कल्चरल एहलाक है, यूनिटी है उनकी, जो उस यूनिटी पर बेस्ड हो, उसकी बात होनी चाहिए. ये जो बात है कि हम उस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे, यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे. इसका कोई ना कोई ये चाहिए कि लोगों की तरफ से ये आवाज उठनी चाहिए that we want to be one, we want to be equal, we want to be peace living people. हिंदुस्तान में बहुत कुछ हुआ है पिछले 9-10 सालों में जिसने हमें तकलीफ दी है बहुत. जैसे यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ किया गया, बड़ी माइनॉरिटी के साथ हमें तकलीफ होती थी उससे. लेकिन जो आज माहौल कश्मीर के लोगों ने बनाया है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कश्मीर के लोगों ने बनाया है, दैट इज व्हाट इज एनकरेजिंग. जो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जो दूसरे जुल्म होते हैं उनकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? वो भी जुल्म होते हैं, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट टाइम फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग. आई माइट हैव माय ओन व्यू पॉइंट फॉर कश्मीर, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ दैट वी मस्ट कम आउट ऑफ this kind of jingoistic, chauvinistic atmosphere, and we must build an atmosphere of peace, amity, friendship. उसकी बात होनी चाहिए और मैं उसी पर बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ. लेकिन ये कहेंगे कि हम वो गलत, इससे बात नहीं बनेगी. पर इतना कहना चाहता था. This is my message to the people of both India and Pakistan, and I would like to take a leave from this panel. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. यही बहुत जरूरी होती है. जी, प्रोफेसर दीपक को सुनते हैं. प्रोफेसर इश्तियाक, निशानदेही करनी बहुत जरूरी है ना. ठीक है, हर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू आज हम सुन रहे हैं. बिल्कुल सही. ठीक है, उनके जूते, ये तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमको जूते में कहाँ काटा जा रहा है. आपको कहाँ काट रहा है, आप हमको बताइए, और हमको कहाँ लग रहा है, हम आपको बताएं. हल ये है कि ये अगर दोनों तरफ से ये दुख है, इसका हल ये है कि बैठो, एक दूसरे से आमने सामने बात करो और इसके ऊपर एक एग्रीमेंट कर लो which should hold on both sides. आपको याद होगा डॉक्टर साहब, मैं एक प्रोफेसर दीपक मलिक कुछ कहना चाहते हैं. प्रोफेसर दीपक मलिक साहब को सुनते हैं जरूर. जी, प्रोफेसर दीपक मलिक साहब. देखिए, ऐसे माहौल में तो सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि जितने भी तरक्की पसंद लोग हैं, जो भी इसको इस बाइनरी के चश्मे से नहीं देखना चाहते हैं, वे सारे लोग इकट्ठा हों. और जो इश्तियाक साहब भी कह रहे हैं कि कम से कम एक कहीं न कहीं एक डिक्लेरेशन हो, एक किसी शहर में बैठा जाए, चाहे पाकिस्तान में भी बैठा जाए, हिंदुस्तान में भी बैठा जाए, दोनों जगहों पर मीटिंग की जाए, बात की जाए. तो मेरे ख्याल से हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे 1 मिनट में कुछ हो जाएगा, लेकिन एक थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, एक शुरुआत होगी, एक पहल होगी, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम बनेगा. ये हम लोग जो पूरी की पूरी लड़ाई लड़े हैं, आज़ादी की लड़ाई, उसमें भी बहुत छोटे पैमाने से भी काम शुरू हुआ है और बहुत डिफिकल्ट वक्त में भी बातें उठाई गई हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन उन बातों को कहा जाता है. तो हम समझते हैं कि देखिए, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसा बहुत कोई लंबा. एक तो स्टेट के लोग खुद फैसला करेंगे, वो अपनी जगह पे है. कोई सिंध वाटर मुआहदे को तोड़ना चाहेगा, विथड्रॉ करना चाहेगा, तो कोई शिमला पैक्ट को विथड्रॉ करना चाहेगा. ये सब बातें होंगी, लेकिन हम आवाम के लेवल पे वेल मीनिंग इंटेलिजेंसिया के लेवल पे हमको कुछ बातें आगे बढ़ानी चाहिए. ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव हो तो फिर कुछ बात आगे बढ़ सकती है.
اور کم سے کم کچھ نہیں تو ہم اپنا ایک جسے کہتے ہیں اپنا ایک اسٹیمپ تو ڈالیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں ایسا, یہ چیز ہم پسند نہیں کرتے ہیں, یہ چیز ہم آج 78 سال پہلے ریجیکٹ کر چکے ہیں, ایک بار اور ریجیکٹ ہو گیا 71 میں جب بنگلہ دیش بن گیا, اس طرح سے ملک بھی ٹوٹے, سب کچھ ہوا, ہم اس کو نہیں چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں جو ملک بنے ہیں وہ بہبودی میں جائیں, وہ اچھا کریں اور اکٹھا ہوں اور جنتا اکٹھا ہو. اور ایسے وقت میں جس میں دنیا میں ایک دم سے ایک اوہاپوہ مچا ہوا ہے, ایسے وقت میں ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں, اور اس پہ ہم کو انیشیٹو لینی چاہیے. اب آپ لوگ فیصلہ کریں جیسے کیسے کیا ہو سکتا ہے. ویسے یہ ہم لوگوں کا جو آج کی بیٹھک رہی ہے یا جو بات چیت رہی ہے, اس کا بھی ایک کوئی نشچت طور سے ایک اثر ہوگا, ایک یہ لائن ایک لکیر کھینچے گی, اور لکیر دونوں ملکوں میں کھینچے گی, ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی. لیکن اس میڈنس سے اور میڈنس کے ساتھ ایک دکھ اور نراشا اور ڈسپونڈنسی اور ہوپلیسنس کے ماحول سے ہم کو نکلنا چاہیے. وی ہیو ٹو سے اٹ ان ویری assertive way کہ وی ڈو وانٹ پیس. وی whatever has happened in the past 70 years back, 78 years back, اب اس کا کنٹینیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. We should learn to live together and we should create a new initiative. یہی میرا And کہنا. before we conclude, I must express my thanks to all the Pakistani friends who have called me from all over the world, offering sympathy and condolences on this حادثے پہ. مجھے بے شمار پاکستان لوگوں نے فون کیے ہیں, امریکہ سے, جرمنی سے, فرانس سے, ناروے سے, ہر جگہ سے. میں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی وزارت سے. ان لوگوں نے فون کیا, تھینک یو ویری مچ. اگر وہ کبھی یہ پروگرام دیکھیں تو آئی ایکنالج دیئر ویری کائنڈ آف یو راکیش صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ, ڈاکٹر اشتیاق صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں آج کی محفل جو ہے میں اس سے بہت انکریج ہوا ہوں, کیونکہ سب کو موقع ملا ہے اپنی اپنی طریقے سے بات سمجھانے کا. اینڈ ایوری باڈی ہیز اے ویلڈ پوائنٹ آف ویو ٹو لک ایٹ دس سارڈڈ سچویشن. یہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار انہی حالات میں ہوئی جب نیشنلزم اور ہیٹریڈ اور ان چیزوں کو زور دیا گیا. تو جو تباہی ہوئی ہے دنیا کی, وائی ڈو وی وانٹڈ. ہمارے ہاں تو صوفی, سنت, گرو, جوگی, ان کا ایک اپنا آلٹرنیٹو ہمیشہ رہا ہے, جو آرتھوڈاکسی اور ڈوگما کو بالکل انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. گل سمجھ رہی تے رولا کی, گل سمجھ رہی تے رولا کی, اے رام رحیم تے مولا کی, اے بلے شاہ نے کیا. تو ہم تو اس ٹریڈیشن کو مانتے ہیں اور آخر دم تک مانتے رہیں گے. یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. شوونزم, جنگوئزم, دوسرے کو ایکیوز کرنا, اپنے آپ کو بری کرنا, یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے. اگر یا تو دونوں طرف بیٹھ کے پراپر انکوائریز ہوں, یا پھر یہ نیریٹو چلتے رہیں گے کہ ظفر ٹرین پہ اٹیک ہوتا ہے تو انڈیا از ریسپانسبل, ادھر وہ پہلگام میں ہوتا ہے تو امیڈیٹلی پاکستان از ریسپانسبل. تو پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایویڈنس دو, تو انڈینز نہیں کہتے کہ ہمیں ایویڈنس دو. سو the main thing is beyond the evidence is a solution, کہ ہم سب بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں یہ اس خطے کو ہم جنگ کا, دشمنی کا, ہیٹریڈ کا ایک خطہ نہیں بنانا چاہتے. ہمارے میں جو چیزیں کامن ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے پراسپیرٹی, سولیڈیرٹی, گلوبل وارمنگ, یہ ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. جی سر, آج کی شانتی امن کیا کوئی متبادل نہیں ہے. دیپک صاحب آپ کو پہلی باری مل رہا ہوں, آپ کو میں کچھ سمرپت کرنا چاہتا ہوں, کچھ نیرج گوپال داس نیرج جی کی کویتائیں. میں ان کو بہت مان دیتا ہوں, ان کو بہت سمان دیتا ہوں. نیرج صاحب میرے خیال سے وہ کنٹمپریری پوئٹس میں بڑے مہان پوئٹ رہے. وہ لکھتے ہیں
आग बहती है गंगा में जेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। वाह जी वाह। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझाने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरा दुख दर्द तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, वाह जिसमें वाह। दो वाह वाह के भी वाह वाह। दिल में एक अपने हो, तेरी आंसू मेरी पलक से उठाए जाएं। गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में आप जैसों को बुलाया जाए। माता वाह वाह। बहुत वाह। ऐसे शुक्रिया माहौल में नीरज को दीपक। बुलाया वाह। जाए, ऐसे माहौल में जफर साहब को बुलाया जाए, मलिक साहब को, इश्तियाक साहब को बुलाया जाए। जरूर आएंगे राकेश वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, प्रोफेसर परमिंदर सिंह साहब हमारे साथ थे, राजन खन्ना साहब हमारे साथ थे। जब तक आप लोग हमारे साथ हैं हमारी उम्मीद कायम है और यही आगे का रास्ता है। बाकी परमिंदर सिंह साहब की मैं उनकी उस बात पे ही आज इजाज़त चाहूँगा और मैं ये बात जब से ये हमारा डायलॉग स्टार्ट हुआ है मैं ये अर्ज करता आया हूँ, लैंग्वेज इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ुबान जब तक ठीक रहेगी, लहजे ठीक रहेंगे तो बैठ के बात करने का माहौल भी बनेगा और इसी पे ये मामला। बीइंग वेरी इंक्लूजिबल क्या करूं, वो कहते हैं कि एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। ये शब्द जो है ना, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। वाह वाह वाह। शब्द के हाथ पाँव नहीं होते, मुंह से निकल गया तो निकल गया। शब्द तो संभाले बोलिए, शब्द के बातचीत हाथ ना करें, संभल के बातचीत करें। दुनिया का माहौल बहुत खराब है, ये That's पराई हमारे घर में ना आ जाए। देखते हैं आगे But चल let's के। close it with Shraddhanjali to the innocent people who died. हाँ Of course. एब्सोल्युटली, वो तो उनको विदाउट श्रद्धांजलि रिजर्वेशन, विदाउट रिजर्वेशन। नमन करते हैं। Very sad for them, बस that's all we can say। Thank you. इजाजत दीजिए Thanks सर, for बहुत शुक्रिया आप लोगों के ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।